हेलो क्लैट एस्पिरेंट. सो लॉट ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट और अब ऐसा टाइम आ गया प्रेपरेशन में वेयर द प्रेपरेशन गेट अ लॉट मोर इंटेंस. So many of us prepare for CLAT and keep ALET, which is the exam for National Law University Delhi, as the secondary option. But a lot of us realize कि यार एक एग्जाम है, you could say उससे एक ही कॉलेज मिलता है. So why to spend that extra time? Why to spend that 3,000 rupees on the form? And can we actually skip it? तो इस पर्टिकुलर सेशन में आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि आपको स्किप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि क्यों लोग वो एग्जाम देते हैं एवरी सिंगल ईयर अलोंग विद क्लैट एंड व्हाई डज इट मेक सेंस. ओके, अंडरस्टैंड दिस. क्लैट के लिए ऑल ऑफ यू आर प्रिपेयरिंग. एलेट में प्रेपरेशन वाइज नथिंग चेंजेस. At least till last year, I know that a lot of us used to prepare analytical reasoning, particularly for ALET. We used to prepare static GK, particularly for ALET, because that was the differential in the preparation between CLAT and ALET. But those things have gone now, right? तो ऐसा नहीं है कि अब वो चीजें वापस हमें CLAT के लिए नहीं करनी है. We have to do that for CLAT also. So if you talk about preparation, it's exactly the same. If you talk about doing those questions, applying that, बस वो थोड़ा सा अलग है. So what we need to do is we need to do maybe 8 to 10 ALET के mock tests also before going into the exam. एक बड़ा फायदा ये होता है जैसे जो बाकी के अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं ना, let's say MHCET, CUET law, these exams happen in April, May. The problem here is when I'm writing CLAT in December starting and when I'm preparing for MHCET or CUET, I will actually forget a lot of things, and these exams in terms of how the questions are asked are very different from CLAT. ALET is not too different. Yes, the number of questions are different, the kind of questions they ask are different, but it is still the same sort of preparation and the exam is just 1 week away from each other. तो इसके फायदा ये होता है जैसे लास्ट ईयर अगर आप कुछ क्लैट एस्पिरेंट से सुनोगे या फिर इफ यू वर अ क्लैट एस्पिरेंट लास्ट ईयर, a lot of you could not do well in CLAT. It could be because of that difficult question or you could say incorrect question. I would say not difficult question. ना या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गई, you could not concentrate in the exam, 120 मिनट्स में ठीक से खुद को अप्लाई नहीं कर पाए, कोई भी रीजन हुआ. But a lot of these people did well in ALET. Why? Because they realized where they could go wrong. And ये सारे अच्छे aspirants थे. They were destined to clear CLAT also, but CLAT नहीं हो पाया किसी वजह से, तो second chance उन्होंने अपने आप को दिया. A lot of parents, particularly जो female aspirants हैं, उनके parents होते हैं और वो कई बार मुझसे भी discuss करते हैं कि sir we don't want to send our kid to Delhi because it's very unsafe. Now please understand this. When we talk about National Law University Delhi, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप दिल्ली में कहीं भी रहोगे. You will stay inside the campus, which is very secure. है ना, आप कभी भी कोई ऐसा केस नहीं सुनोगे जो थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न्स के हिसाब से कोई ऐसा केस बना हो, particularly for NLU Delhi, because the campus is very safe, the security is very tight, right? So सेफ्टी कंसर्न की वजह से अगर आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे हैं टेस्ट ना देने के लिए, एग्जाम ना देने के लिए, प्लीज शो देम दिस वीडियो. सेफ्टी इज नेवर अ प्रॉब्लम इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली. उसके अलावा हम लोग कोई अच्छा NLU क्यों चूज करते हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू गेट गुड प्लेसमेंट्स, वी वॉन्ट टू गेट गुड एक्सपोजर. सम ऑफ यू मे वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर जुडिशियल सर्विसेज, UPSC लेटर. दिल्ली के पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, आप इंटर्नशिप्स दिल्ली में आराम से कर सकते हो. ऑल्दो कॉलेज के रहते रहते इंटर्नशिप्स नहीं करते बिकॉज कॉलेज ऑल्सो हैज दैट मिनिमम अटेंडेंस क्राइटेरिया, बट देन आप दिल्ली में रहकर ही इंटर्नशिप कर सकते हो, है ना, इन योर वेकेशन. सो दैट मेक्स थिंग्स ईजियर फॉर यू. एंड दिल्ली विदाउट एनी डाउट इज अ Tier 1 लॉ स्कूल, राइट? तो Tier 1 लॉ स्कूल में हम अपना एक चांस बढ़ा देते हैं इफ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर ALET ऑल्सो. तो इट्स नॉट अ वेरी बिग बेट. आई एम अंडरस्टैंडिंग कि अगर आप NLUs में अबाउट 2 to 3 लाख रुपीज पर एनम देने को तैयार हो, है ना, व्हेन यू एक्चुअली गेट अ गुड NLU, तो आप शायद 3,000 रुपए खर्च करके खुद को एक सेकंड चांस दे सकते हो. एंड मेरा ये स्ट्रांगली सजेशन होता है कि कुछ प्रिपरेशन अलग से मत करो ALET के लिए. बस हर वीक या 2 वीक में, है ना, 10 डेज में कर सकते हो एवरेज, एक मॉक टेस्ट कर लो. अगर आप महीने में 3 मॉक टेस्ट भी कर रहे हो इन द लास्ट 2-3 मंथ्स, दैट्स ऑल्सो गुड इनफ. बस इतना सा करना है और एग्जाम देने जाना है. दैट इज वॉट यू नीड टू डू. तो जब हमारी एफर्ट ही ज्यादा नहीं लग रही, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ 3,000 रुपीज, राइट? मैं आप लोगों के कंसर्न्स बहुत ज्यादा समझता हूँ बिकॉज जब मैंने ALET लिखा था ना, मुझे भी ऐसे लगता था कि एक ही कॉलेज मिलता है. द चांसेस ऑफ सक्सेस आर सो लो. क्लैट में इवन इफ आई गेट लेट्स से 1000 रैंक और 800 रैंक, आई विल गेट अ डिसेंट कॉलेज. NLU दिल्ली तो मतलब आई विल प्रॉब्ली नॉट गेट. ऑल इंडिया जनरल में तो 100 पे भी, अब तो क्या सीट्स बढ़ गई है तो 100 में मिल जाता है, बट किसी जमाने में नहीं मिलता था 100 में भी, राइट? तो वो एक कंसर्न है जो आपके दिमाग में भी रहता होगा. बट मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड ऑलवेज गिव योरसेल्फ दैट सेकंड चांस. आपको लगता है नहीं मेरे तो क्लैट इतना फाड़ हो गया एकदम 120 में, आई एम गेटिंग 105 मार्क्स, मेरे को तो एकदम टॉप सिंगल डिजिट रैंक मिलेगी, मत जाना एग्जाम देने. क्या होगा वर्स्ट केस?
प्रॉब्लम ये होती है कि जब लोगों का क्लैट अच्छी प्रैक्टिस के बाद, अच्छी प्रिपरेशन के बाद भी ठीक नहीं जाता ना, देन दे रिग्रेट इट और उनको लगता है कि एलिट का फॉर्म भर ही देते, है ना। एटलीस्ट वी वुड हैव गिवन आवरसेल्व्स दैट चॉइस। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप जरूर एलिट का फॉर्म भरो। आई हैड रिसेंटली क्रिएटेड अ वीडियो कि एलिट ने भी नए फॉर्म्स रिलीज कर दिए हैं, तो आप लोग अपने फॉर्म्स जाकर जरूर फिल करो, है ना। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस, नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड। फीस भी 500 रुपये कम की है, तो शायद एक वो थोड़ा सा एक छोटा सा इंसेंटिव बन सकता है हमारे एंड पे, है ना। एंड आई थिंक ये मतलब बार बार मैं एक चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि प्लेसमेंट वाइज इट्स अ गुड कॉलेज, तो आपका एक अच्छा कॉलेज से पढ़ना हो जाएगा इन केस लेट्स से क्लैट डज नॉट गो वेल एंड यू डू वेल इन एलिट। अगर ये मान के चलो 50% स्टूडेंट जो एलिट क्रैक करते हैं ना, उनका क्लैट नहीं क्रैक होता, बिकॉज दोनों बहुत अलग अलग टाइप के एग्जाम है। क्लैट में लोग गलतियां करते हैं, एलिट जो उसके एक हफ्ते बाद होता है और वहां पर वो क्रैक कर लेते हैं, राइट। And for you, we have launched a new crash course for CLAT and AILET का consolidated batch है एक, जहाँ पर आपको AILET के भी मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारी क्लासेस वगैरह मिलेंगी, और CLAT की क्लासेस तो ऑब्वियसली मिलेंगी विद रिस्पेक्ट एंड प्लस ऑल दी CLAT मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट एंड व्हाट नॉट, राइट। दिस इज कॉल्ड वर्चस्व एंड वर्चस्व प्लस। यू गाइस कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दैट। 12minutes2clat.com विजिट कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स दे दिए, यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर एज वेल। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दीज नंबर्स, या फिर आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हो 12 minutes to CLAT की फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, एंड आराम से प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओ। अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है दोनों प्रिपरेशन को अच्छे से साथ में करके उसको खत्म करने का, ठीक है। यूज माय कोड मालपानी, यू विल गेट मोर डिस्काउंट ऑन दिस ऑलरेडी वेरी वेरी अफोर्डेबल बैचेस, वेयर इंडियाज मोस्ट रिलायबल CLAT कोचिंग एंड द मोस्ट अफोर्डेबल वन एज वेल। You don't have to worry about anything with respect to the quality of teaching, the quality of material, the quality of resources. We will be providing you with literally everything, right? Keep it simple. I would suggest you to prepare for AILET as well. और अगर इसके अलावा कोई डाउट है कि आप क्यों AILET के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, then what I discussed in this video, please mention that in the comment box. I'll be happy to take it from there and answer it for you and clarify your concerns if there are any. Okay? All the best, guys. I will see you in my class.